Now I hope you had something to eat. No, I couldn't, but I think I've managed to give some water to some people. Now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, okay, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is, Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or a regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced, and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed. And the second stage is, if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if Your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कंट्री एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये polling हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have Nishtar Hall. और अगर polling नहीं हुई और कम लोग आएंगे, तो फिर हम वैसी एक gathering करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security Peshawar में फराहम करें. This is at page 12. And then Your Lordship, eventually, if Your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if Your Lordship looks at page 16, ये venue communicate किया था आपने अपना ECP को? ECP को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ECP का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए.
जी ये एक लेटर पेज 13 पे आती की पेपर बुक जी में। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्होंने बाद हमसे आपने कहा, उनको बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है। जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और लेटर पुलिस से, में आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये जी, उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया। 23 का लेटर है ये। इसका जवाब लगा हुआ है इसमें। जी, इस उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली, एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी के in all the newspapers actually published it. PTI intra-party page 16, PTI intra-party इंतखाबात पेशावर में, PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है। पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। So that was also, the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये फर्स्ट का डेट खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे, पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे, तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस, so he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया। कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया, ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं, उनके पास पैनल होता, तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन, एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके। पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में से, आई विल रीड द इस पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी, item 5, last election of chairman, and अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर, सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे, नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass some. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन, नहीं सिर्फ चेयरमैन के। क्यों? कहीं लिखा है ये? तो पैनल है ना जी, नहीं कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं। I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है। पैनल कहीं इसका एक्सप्लेन किया गया है? कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ एक्सप्लेन नहीं किया। ये 5.1.1 भी पढ़ लें जी,
chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be, ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ था, ये भी nomination paper इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं, इधर नहीं है. So there are two, नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया. नहीं सर, nobody came and opposed him. इनके भी nomination papers अगर आप देखें तो nomination papers इनके भी ये जो हैं, if your lordship turns to page 17, yes. page 17, नहीं, दो अलग अलग बातें हैं ना. ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है. इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है. बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे. फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा. नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे. जी जी. मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर जी. शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स. जी. सीक्रेट बैलेट, जी ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी. तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना. अगर सर कंटेस्ट ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड. उनको वोट तो डालना होगा फिर भी कि हाँ जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया. सर इन मगर फैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे. वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू. सो इफ यू आर अनकंटेस्टेड, नहीं, देखिए, वोटिंग ये भी हो सकती है मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है. अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती. बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं. जी जी, ठीक है, एग्जांपल है. तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं. तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके. मतलब सर जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है. मैं आई विल टेक ओनली आई विल ओनली खैर आगे बढ़े सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ. I'll read it. Your lordship doesn't have to open it. कि वहाँ भी लिखा हुआ है कि where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. ये लिखा हुआ है ना. अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट्स. बट आई मीन आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं. सपोज एक वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से. तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो he would still be elected although uncontested. तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ. एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म, तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना. डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली. फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए. गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे,
तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई फिर। मतलब सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, जी। इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे to be honest, I was elected unopposed. So I actually क्या मतलब? मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर on the technocrat seats there were 2 seats. अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग वही है। लोग थे, मैं और एक थर्ड साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। वो उस पे सेक्रेटरी उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं so वो मैं actually अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम आल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। जी, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाएं। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन? मतलब मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो करो करो, बाबा करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। तो जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा। The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं, मगर देखिए हम उस पे तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एमपी को भी प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, आप देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली, वो तो है। वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं
हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में हूँ। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नजर से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में, मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ इकोनॉमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर, वो दूसरा आएगा कि मैं कहता हूँ इकोनॉमी यूं चले, कहेगा जी यस सर, तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या एकदम क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not represent. The question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली आई These are just questions, it's not even a mindset. हम उनसे भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। I also personally believe sir कि ये जो principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. Right. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है। These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. बताओ, आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो। वो तो अगर ये आता है ना, तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल, ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन, किसी नहीं पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ। ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल। ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए, आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि I want to contest an election as general secretary of the party.
सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डेप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है, समझ गया। आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर 10 रहा का ही है। होगा। हाँ? वो भी 10 लेके आएगा बंदे, नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना। लड़ेगा। वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई। आपने कहा 6 पैनल थे। सिर्फ फॉर each for center there is one panel. For each province भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग। सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का। अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी, कोहेजन नहीं, एक सोच थी। एक सोच थी। उसको जो भी आप लफ्ज कह लें, यस, ठीक है, ओके। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट। जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था। बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया। जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी। फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी दो? बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक। सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100। ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules ऑफ ईसीपी PTI। अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100। जो उस रूल के मुताबिक क्योंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time। ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 होगा, पार्ट 1। ठीक, चलो आगे बढ़े जी। सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने तो मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको
अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेंबरान, मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आपका एलिगेशन उस सब जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्होंने बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। So your lordship is उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे, तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया आपने। उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं भी, ठीक है। तो अगर ये देखें कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ईसीपी उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्जा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाजे हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। Not for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं फिर वो तो ने मान लिए तस्लीम। क्या कोई और लेटर है? जो मैंने कॉपी लगाई हमने ये तस्लीम नहीं की हमारे में। और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट, आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that। नहीं तो पहले ही दिन अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें, सही है? आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ ऑफर हुई थी, लेकिन शायद हाँ? उनका यही तो आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ ये ऐसी और ना लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई सो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं, बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, अवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए चले कोई अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए ये भी हर पार्टी, या आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब खुली किताब है। तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है।
तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर सिंध अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही सही करने लगे ना तो एक अच्छी The बात best होगी। thing that your lordship did was ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह At least we are going that you way. can take credit for that. Me, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. देखिए, और देखिए इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी। आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी। I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. चले Acha, now, so basically, sir, coming, so I've tried to नहीं ये बात demonstrate- समझ गए, अगला पॉइंट बताएं। Now, sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So, sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3, नहीं तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। नहीं 17(3 जो है सर of the election of the Constitution, वो provides कि source of fund जो है, Not to the elect, no, we are talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read No, 17(3, do they have they have jurisdiction. जी, they do. Under, Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, वो तो उसमें read with ये नहीं Section लिखा है ना, 210. कौन फैसला यून करेगा इस बात का? ये sir 21 these 73 and 210 have been interpreted by the हाँ, Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, हाँ। मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट ही में मिलेगा जाकर के। नहीं लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर, every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002 To whom? 210 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है, a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a आप financial कहाँ year से पढ़ रहे हो? to Section 210. नहीं वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना। जी जी, तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन इख्तियार में नहीं है। तो इसी तरह तो फिर आपका आर्गुमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है। लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर, बिकॉज ये जो है जो 210 है, that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 कि आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं आप ऑडिटेड आप अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है। वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है, वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है। तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या मैं तो इसलिए आप कह एक रहा हूं पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं। because the language of 209 and 210 are different, much different. मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं नहीं, वो तो एक हाँ। दो अलग चीजें, हाँ, दो अलग जुरिसडिक्शन की और
आईनी आइन की बात थी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा trial का process detailed दिया हुआ है. And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या-क्या grounds हैं in which the election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So, पूरा 10A का Article 10A का process detail में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election, जिसकी Election Commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झाड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो दूसरी जैसे है. उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झाड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स. बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं. वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties, and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको enlist ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द एनलिस्टमेंट. जी, का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान लिया, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आइन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आइन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ
ये बात सही है, जी। मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। Correct. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, Correct. वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का License. टुकड़ा चाहिए। वो ये- अब उसको इनकार, अगर वो कहती मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखें, वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। जी, तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना। 202 अगर आप देखें, ये 5 तो जो हम अगर पढ़े, वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है, जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से। और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। अगला प्रोविजन पढ़िए। जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर, तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों का उनको केस। उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं, सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी, आपका। सर मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको। आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? जी, मैं भी वही दिखाऊंगा कि by taking away the symbol, they have actually made me dysfunctional. They have actually made me dysfunctional. I'll show you how. नहीं, वो it may be, हाँ, तो वो they can't do indirectly. but then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow Or that. inactions. Law allow नहीं करता। लॉ कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल। वो सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है। जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और हम आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट, so now I was just I'm referring to ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is कि 154 में, for example, clearly लिखा हुआ है कि 154 section 154, 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208, your point is taken, it is not been specifically provided. They are saying it is, ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is कि under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। Ji. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get there. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे। जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए। जी अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्सॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके
तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह नहीं पहली कह रहा। बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, Just नहीं very नहीं, briefly. हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, हाँ। मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं, आप ना जाइए। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया तो पोर्शन दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। नहीं, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution, see, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है। वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, As an abundant precaution, you may want to file it, उसमें objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, each one If of we your can candidates. find a solution with if you give the solution now, that means we're deciding the issue. जी, But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी। और दूसरी चीज सर जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने, you can't field the candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he's independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means your lordship. नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती। नहीं, मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी, सेक्शन 67(3). ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर। This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of हम the इनसे political जरा arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से। कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर। कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल वो होगा। आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे एक कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं। इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is Are you stopping them from contesting elections? not that the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard Any with simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest हम elections. The record only कर thing लेंगे, which is being बात denied मैं is the बात- symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है, फिर- मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन। how will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर। क्या? We can't fight election in the air ना सर। इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके किस अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से हाँ। चले, ये भी सही है। अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो। कोई भी सिंबल। एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट। I can't fight at PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI
candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? अब नहीं, ये saying election लड़ सकते हैं, आप election लड़ें, मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ that is असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने is PTI जो भी है X पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. X party, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, X party बन जो भी जाएगी है, पार्टी. X party wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये आप ये सारी मफरूजों पे अब जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होकर इलेक्शन लड़ सकता है. Sir, but under what? As independent ना sir? नेचुरली, हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो independent. देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देखिए बराबर में क्या हुआ. सर देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने. अगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बात नहीं, ठीक है. ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. So this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट नो. Sir, होगा ये कि let us जाएगा कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा. नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, let us say MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, यानी PTI Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say PTI these के हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा. जी, अलहदा मिलेगा. हाँ. अच्छा, अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, उसके ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पार्टी में तो है ना. नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, सॉरी. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले, कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, So he may have to go. I think. Right now. I will continue. Ji. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67 3 के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है?
ना अभी ठीक है हाँ So your lordship will see that 63A capital A जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर, नहीं, खत्म करा दिया। खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो आप ही की तो मेरी पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, अब ये तो नहीं हो सकता कि वोट मैं आज काउंट इस नहीं हो तरफ सकते। करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब, लॉर्डशिप इज हाँ? रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा बहरहाल। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, ठीक मगर है। वो ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज समथिंग दैट इफ यू टेक दैट अवे, माय सबमिशन इज कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। ये मैं कह रहा हूं। इधर आए। एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। आई अंडरस्टैंड। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म a political party, लेकिन there are number of penumbra rights that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन and operate as a political party. Now, your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग,
I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि accounts जो हैं, वो audited accounts, ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88, Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88, Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने, ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी, वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी, वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह है, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको ये आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. If your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी. स्लो डाउन हो गया जी, your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने. देखिए उनकी जो एंजाइटी थी
इलेक्शन वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप मैंने ये कह रहे इलेक्शन हैं कराया, कि उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं ये। मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे किधर उस इलेक्शन कराया को। आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have. पहला वाला जो पहला उन्होंने किस तारीख का था? मई जो मैं कर रहे आपकी थे अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर में? मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे नहीं दिया। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है आप सिंबल ये वाली, देखें, फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, ये हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी अपने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे हमने थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए, कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको वो मैं ऑटोमेटिक। दिखा दिया आपको। मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया। उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, Debatable, यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। चलिए, नाउ ठीक। क्वेश्चन इज, नहीं देखिए, इस पे हमारी दो राय नहीं है। वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स। sir, these are important. इसमें अगर Why कोई this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चले उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं। वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दे, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, आईनी बात, मेरी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर। जी, मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात। कोई नया पॉइंट बताएं ना अगला। So point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. करेक्ट। एंड उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising billions. आप खुद इलेक्शन अभी नहीं करा रहे हो, recently फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी। A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ। हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। Now there's a very positive। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी, it cannot be executed। मेरा जजमेंट था। It's अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात। उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा अच्छा, वो वाला 62(1)(f) ओके ओके, ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके ओके, मैं समझ कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल। एक बंदे के लिए भी, तो यहाँ तो सर
पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just what because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I will try. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept. And as a consequence of it, you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not. I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं sir. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है. ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना, ये जो and that is, ये आप ये जो बार-बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले. अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैंने कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना, मैं देखता रहूं. तो एक तो योगा देखिए, अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौक़िफ़ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं
लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा दो, तो नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे, हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको ऐसे हमें शायद हम बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल्स शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट उसके बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स, एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. That you should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे always पास be- भी एब्सोल्यूट पावर था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो एब्सोल्यूट देखिए I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship, चलिए खैर कोई जी, अब तो आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party ये elections, point- it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है, जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights, and वो कॉन्सेप्ट लेके आए from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17। और political justice का preamble में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments.
Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस हाँ जी, बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप ये किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो, I'm not, this is the second, third point, sir. ये 200 This is now a very important point for me. It says, what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। So that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में सेक्शन को, फिर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 नहीं, ये चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 क्या 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी सही वाली A court of law can be abolished by law. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजीज़ शूरा पार्लियामेंट। जी, ये आपने पढ़ लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो। सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकॉग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है। I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है। to the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे। बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल disputes हैं they will go there. So you don't have to specify. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, plenary jurisdiction on disqualification 62(1)(f का, भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है,
बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं हम। सही। तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only, कि dispute. गौर साहब, that is all right? हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? Your Honor, there were यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। भाई अभी मेरे ख्याल- सिचुएशन क्या है? It's a very serious. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब Your Honor, it's- ये आ गया। हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। गौर साहब, मेरे घर- नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, you we want it fixed. My lord, We want it fixed. my lord, it will be, it will be, it will. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं नहीं, सिर्फ- we are hearing this. आपके- आपके- नहीं, नहीं, देखिए ना, फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई वकील हूं, अभी तो हमने किसके कहा ना, सामने if he बताऊंगा? doesn't, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात- अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ Please, ये अर्ज कर please, रहा हूँ